Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to my all student of level 9. My dear student, today we will start our new chapter, motion and force. In this chapter we study about force and laws of motion. So look at your screen. Force. What is force? We observe in everyday life that a force is needed to move or stop a body. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ को रोकने के लिए या उसके अंदर मोशन पैदा करने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ यू वांट टू मूव अ फुटबॉल वी मस्ट किक इट. Similarly, if you want to move a heavy object, say a box, from one place to another, we have to push or pull it. If we push a truck at rest, it will remain at rest because क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. Although the force is applied on its produce motion, similarly, force can be used to stop a moving body, but sometimes it is not possible. Thus, force can be defined as agent which produce or tends to produce motion in the body, or which stop or tends to stop the motion of body. Force can also distort or tends to distort the shape of body to which it is applied. फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन पैदा कर सकती है. फोर्स किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है. फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन को रोक सकती है. हमारी डेली लाइफ में अगर हमें फुटबॉल को किक करना है तो हम उसको अपनी लेग से फोर्स लगाते हैं तो बॉल को हम शूट करते हैं. अगर हम क्रिकेट की बॉल कराते हैं तो बॉल के लिए हम अपने हैंड से फोर्स लगानी होती है. अगर हम सिक्सर या बॉल को शूट करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो हम अपने हैंड से बैट के थ्रू फोर्स लगाते हैं. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. नाउ सम डायग्राम्स इन योर बुक रिलेटेड टू फोर्स. इन फिगर है यू सी कि इसमें स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड किया जा रहा है. दिस इज़ कॉल्ड अप्लाई फोर्स टू स्ट्रेच द स्प्रिंग. एक मेटल रोड है, उसको बेंड करने के लिए दोनों हैंड से हम उसको फोर्स देके मूव कर रहे हैं. एम्प्टी कैन आपके पास है, अगर इसको हम हैमर से फोर्स दें तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है. अबव फिगर शोज दैट द फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, बेंड और ट्विस्ट अ रूड और चेंज द शेप ऑफ एन एम्प्टी कैन. Thus, force may also be defined as any agent which produce distortion in a body to which is applied. Force को हम ये भी कह सकते हैं कि force is agent which produce distortion, जो कि प्रोड्यूस करती है distortion in a body to which is applied, जिस बॉडी पर उसे अप्लाई किया जाए. आई होप कि आप लोगों को फोर्स का फिनोमिना समझ में आ गया होगा कि फोर्स इज एजेंट विच प्रोड्यूस मोशन ऑफ बॉडी. फोर्स इज आल्सो डिस्टोर्ट द शेप ऑफ बॉडी एंड मोशन इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर हम डोर को पुल करेंगे तो वो पुलिंग फोर्स होगी. अगर हम उसको पुश करेंगे तो फोर्स आउटवर्ड होगी. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मोशन पैदा होता है. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ related to force. Now we will move to the Sir Isaac Newton's laws. There are 3 laws of Sir Isaac law, Newton's laws of motion, जिनको हम कहते हैं the motion and it is cause. Causes was one of the main problem of physics, it remained unsolved for a long time. Galileo was among the earliest scientists who tried to solve this problem and pointed out that the motion of a body continues along a straight line unless there is some forces that causes it change, that is the state of motion. In 1687, Newton in his book Philosophia Naturalia Principia Mathematica, ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग इंग्लिश में की गई, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, in which the mainly studied motion of planets and other heavenly bodies. In this book, Newton names the basic principle of motion in 3 laws which are as follows. इसी बुक में न्यूटन ने अपने 3 लॉज का जिक्र किया, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वी ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक laying on a table cannot change its position by itself unless a force is applied to change its position. Similarly, if I push a ball on the ground, it should continue its uniform motion indefinitely, but it stop after covering a certain distance.
As soon as the ball starts moving, a force of friction comes into play which opposes the motion of the ball. These observations were summed up by Newton his first law of motion, which is stated that कि न्यूटन ने इन एग्जाम्पल्स को, इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को कंक्लूड कर एक लॉ की शक्ल में डिफाइन किया कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट स्टेट्स और रेस्ट और मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज इट स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी अपनी सुकून की हालत में पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस्तेमाल ना की जाए। अगर बुक टेबल पर है तो टेबल पे जब तक उस बुक को हम फोर्स लगा के उठाएंगे नहीं तो उसमें मोशन पैदा होगा नहीं। अगर कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी मोशन रुकेगी नहीं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर रजिस्टर्स अपने फेयर कीजिए और इंशाल्लाह एज सून एज आप अभी इंशाल्लाह हमारी इसी मंथ के एंड से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये टॉपिक हम क्लास में करेंगे। जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।